آج کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرسمس کے تعلق سے ہے، بڑے دن کے تعلق سے، اور ہم پڑھیں گے میکا نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ میکا 5:2 یہاں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، قدیم الایام سے ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، کہیے آمین۔ اس آیت کا پس منظر اور سیاق و سباق بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت میں جو لفظ دیے گئے ہیں پہلے ان پہ غور کریں۔ یہاں بیت لحم کے ساتھ افراتا بھی لکھا ہے۔ افراتا بھی بیت لحم کا نام ہوا کرتا تھا، لہذا دونوں اکٹھے بولے گئے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تو یہودا کے ہزاروں میں سے سب سے چھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ 1000 میں بھی تو چھوٹا ہے۔ ٹاپ 10 ہوتا ہے نا کہ 10 بڑے، تو یہ اگر 1000 ہوں ان میں بھی سب سے چھوٹا ہے، بہت چھوٹا بیت لحم۔ اور آگے لکھا ہے، میرے حضور تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا۔ شخص کا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں، فرد، انسان۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی ایکسکیوز می یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کسی شخص کے بارے میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے جو شخص بن کر آیا، ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ ویسے بھی آگے چلیں تو لکھا ہے، شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کی نہیں ہو رہی، یہ تو شخص ہے اور بادشاہ اسرائیل کا۔ لیکن آگے پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا یہ یسوع مسیح کی بابت ہے۔ لکھا ہے، اس کا مصدر، اس کی ابتدا، اس کا آغاز زمانہ سابق، قدیم الایام سے ہے۔ تب ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی ابتدا جو ہے قدیم الایام سے ہے۔ اس کا مطلب اس کی ابتدا ہے ہی نہیں، نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخر، اور اس کا نام ہے ابتدا اور انتہا، الفا اومیگا، اول اور آخر، جس کی ابتدا ہی نہیں۔ اس کی ابتدا قدیم الایام سے ہے، یعنی گزشتہ ایام سے ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود بھی ایک دفعہ کہا، جب بات ہو رہی تھی ابراہیم کی، تو لوگوں نے کہا، یسوع تو چھوٹا ہے عمر میں، ابراہیم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ تو پھر ثابت ہوا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہلو، کس کے بارے میں؟ بولیے بھائی، یسوع مسیح کے بارے میں۔ میکا نبی نے یسوع مسیح کے بارے میں تقریباً 700 سال قبل از مسیح میں یہ پیش گوئی کی تھی۔ جس وقت میکا نے پیش گوئی کی یا پروفیسی کی، اس وقت شاہ یہودا یوتام اور آخز کا دور تھا، اور حزقیہ کا بھی۔ اس نے 3 ادوار، بادشاہوں کے ادوار میں نبوت کی ہے میکا نے۔ اور اس دور میں حالات کیا تھے؟ جب وہ نبوت کرتا تھا، جب میکا نبی تھا، حالات یہ تھے، اخلاقی طور سے لوگ پست تھے، بڑے بد اخلاق، ہر طرح کی اخلاقی برائیاں ان میں تھی، مذہبی لحاظ میں سے بھی بہت وہ کیا کہنا چاہیے، بری طرح سے گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، بے راہ روی کا شکار تھے، پستی میں گرے ہوئے تھے، سرکشی اور بغاوت ان میں پائی جاتی تھی، اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ حالانکہ حزقیہ کا اچھا دور تھا، یہاں یوتام اور
आखिज का भी जिक्र है। इन नबियों के, इन बादशाहों के दौर में अच्छे हालात भी थे, भी बुरे भी थे, लेकिन जब मीका नबूवत करता था उस जमाने में ज्यादातर हालात बुरे थे। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूं। मीका दूसरे बाब की पहली दूसरी आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते हैं और बिस्तर पर बड़े बड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। ये हालत थी। रात को सोचते थे, रहते थे, सुबह उठेंगे कौन सा जुल्म करेंगे, कैसे किसी का नुकसान करेंगे, और फिर रात भी गुनाह में गुजरती, सोचे भी गुनाह में, और सुबह उठ के गुनाह को अमल में लाते थे। ये दौर था जब मीका ने नबूवत की। और उस वक्त यीशु मसीह को पैदा होने से अभी 700 साल बाकी थे कि उसने एक पेशगोई कर दी कि इस्राएल का एक हाकिम आएगा और वो हाकिम एक शख्स होगा और उसकी जो इब्तदा है वो इब्तदा से है और उसकी कोई इंतहा नहीं है, वो इब्तदा और इंतहा है। तो पहले तो वो सोच रहे होंगे इस नबूवत के बारे में कि मीका नबी किसी नबी की बात कर रहा है। जी नहीं, नबियां दा सरदार जे हो, वो तो बात कर रहा है यीशु मसीह की। अब रही बात, बैतलहम से एक शख्स निकलेगा, छोटा सा शहर। अब गाते नहीं है, छोटे शहर बैतलहम तू कैसा है खामोश। तो बैतलहम एक छोटा सा शहर था और इसके बैतुलहम का मतलब है रोटी का घर। बैत कहते हैं रोटी और लहम, बैतुलहम रोटी का घर। अफराता का मतलब है फलदार, जरखेज, तो इसका मतलब रोटी का घर भी और जरखेज भी इसका मतलब है। और दूसरी बात, मैं बैतलहम की बात कर रहा हूं, दाऊद की जाए पैदाइश है, यह दाऊद का शहर कहलाता है और यरूशलेम के जनूब में 10 किलोमीटर के फासले पे बैतलहम। कोई नाम पता किसी को पता ही नहीं था, आज दुनिया में हर शख्स को पता है बैतलहम। क्यों? क्योंकि वहां बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ। हालेलुया। किसी गांव का नाम अगर मशहूर ना हो तो वजह यह है कि इसलिए कि वहां से कोई अच्छी बड़ी शख्सियत पैदा ही नहीं हुई। लेकिन इस बैतलहम का मशहूर नाम इसलिए है कि वहां मुनज्जी पैदा हुआ, दुनिया का निजात देने वाला। और यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर, सरसब्ज, खुशहाल। तो रोटी का घर, रोटी यीशु मसीह है। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, लिहाजा बैतलहम यीशु मसीह का शहर। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और यीशु ने खुद भी कहा, यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 35 आयत में यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी की रोटी का घर, ऐसे रोटी का घर नहीं बैतलहम, जिंदगी की रोटी का घर। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है और उसका घर बैतलहम, वहां पैदा हुआ। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और आज जिन दिलों में यीशु पैदा हुआ है, जिंदगी की रोटी उनके अंदर है। बोले हालेलुया। हम चरनी में यीशु को दिखाते हैं, यीशु चरनी में पैदा हुआ। जी हां, जरूर चरनी में पैदा हुआ, लेकिन चरनी में तो पैदा हुआ था। आज जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनके दिलों में यीशु जन्म लेता है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी की रोटी, सरसब्ज और शादाबी जो है हमारे अंदर आ जाती है। जिंदगी की रोटी हमारे अंदर आ जाती है, हम बैतलहम बन जाते हैं। बोले हालेलुया। हम खुदावंद का घर बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। अब बैतलहम का कोई वाकया आपको याद हो? नहीं याद? उसी रात को चरवाहे थे, अब सबको पता है, जो मैदान में रहकर अपने गला की गलाबानी कर रहे थे कि फरिश्ता आया और उसने क्या कहा गदरियों से,
आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में यानी बैतलहम में तुम्हारे लिए एक निजात देने वाला पैदा हुआ है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा पाओगे, चरनी में पाओगे। बस वो गए और साथ उन्होंने, फरिश्ते ने कहा ये खुशखबरी सारी उम्मत के लिए है, वो सारी उम्मत का निजात देने वाला है। और डरिए भागे, जल्दी की, हालांकि रात थी, हालांकि सर्दी थी, भेड़ों की हिफाजत करनी थी, और भेड़ें भी शायद अपनी नहीं है, वो किराए की भेड़ें भी पालते थे। बड़े बड़े जो मालिक होते थे वो अपनी भेड़ें उनको दे देते थे, परवाह नहीं की, यीशु मसीह को देखने के लिए भाग गए। हालेलुया, बोले हालेलुया। ये बैतलहम का वाकया है जो मैंने बयान किया। और फिर सुनिए बैतलहम का वाकया, लिखा है कि मजूसी, 3 मजूसी ये मशरिक से, दूर दराज से आए, कई मजूसी आए, बहुत से, सेवरल, बहुत से आए, लेकिन 3 पहुंचे और तीनों अपना अपना पैगाम लेके आए। कहां? बैतलहम में। कहां आए? बोलिए जी, कहां आए? और ये मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में लिखा है कि बैतलहम में। याद है जब मजूसी आए तो उन्होंने कहा एक बादशाह पैदा हुआ है। हेरोदिस ने कहा बादशाह, एक म्यान में 2 तलवारें, मैं बादशाह हूं, मेरी जगह और कौन सा आ सकता है। बस उसने फकीहों को जमा किया और कहा सब जरा बताओ तो सही, तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं। उन्होंने कहा किताबें और हमारा इल्म ये कहता है कि बैतलहम में बादशाह पैदा होगा, यीशु मसीह। तो फिर क्या हुआ, पता चल गया उसको, हेरोदिस को भी, कि जो बेटा है, जो यीशु मसीह है, जो निजात देने वाला है, बैतलहम में पैदा होगा। बोले हालेलुया। तो यह है बैतलहम का तारुफ। इसीलिए तो मीका ने कहा कि ऐ यहूदा के शहर बैतलहम अफराता, अगरचे तू हजारों में सबसे छोटा है। पाकिस्तान के कितने बड़े शहर हैं? बहुत से हैं, मुझे सब शहरों के नाम याद नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कराची तो ये सबसे बड़ा शहर, और साथ ही अगर मैं कह दूं पत्तों की, बहुत छोटा, यानी उसका बड़े शहरों में नाम ही नहीं है। पत्तों की या और कोई कह ले, काला शाह काकू कह ले, भाई फेरू कह ले, नारोवाल, इनका बड़े शहरों में तो शुमार होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों को पता कि कोई पत्तों की भी है, कोई नारोवाल भी है, शाहकोट भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन बैतलहम का तो लोगों को पता ही नहीं था। हजारों में शहरों की तादाद गिन ले, 1,000 भी नहीं है, इतना छोटा था। लेकिन आज पूरी दुनिया बैतलहम का जिक्र करती है। और नजात दहिंदा बैतलहम में पैदा हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जो जमीनी बाप यूसुफ और मरियम, ये कहां के रहने वाले थे? हमारे इस रोड का क्या नाम है? नासरत। वो नासरत के रहने वाले थे, नासरत के रहने वाले थे। यीशु नासरत में पैदा नहीं हुआ, बैतलहम में हुआ। और वाकई आप जानते हैं, और ये भी खुदावंद की कुदरत थी, ऐसा होना था, क्योंकि मीका की पेशन गोई पूरी होनी थी। मीका ने जो कहा था वो पूरा होना था। इसलिए अगर यूसुफ और मरियम नासरत में होते, मरियम नासरत में होती, तो यीशु मसीह कहां पैदा होता? बोलिए जरा, कहां पैदा होता? लेकिन बादशाह की तरफ से, कैसर अगस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि जो तुम्हारे अबाओ अजदाद का शहर है, जो तुम्हारी जाए पैदाइश है, जो तुम्हारे बाप दादा से चली आती है, जहां कि तुम स्पेशली खुसूसी तौर से बासी हो, हर शख्स अपने उस जगह जाए पैदाइश में जाके नाम लिखाए जो उनके बाप दादा से चली आती है। लिहाजा उनके बाप दादा, परदादा, चगड़ दादा, ऊपर कह ले, चलते चलते ये बैतलहम से थे। लिहाजा उन्हें जाना पड़ा अपने नाम लिखवाने के लिए। कहां? बैतलहम में जाना पड़ा। और दाऊद जिसकी नस्ल से यूसुफ है, दाऊद की नस्ल से, दाऊद का शहर बैतलहम है। लिहाजा उन्हें बैतलहम में जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा। और वहां चरनी थी, जानवर चर रहे थे। और आप जानते हैं जानवरों जहां पे चारा खाते थे, नहायत घटिया जगह, नहायत गलीज जगह, और जिसका कोई माशरे में नाम नहीं है। अगर आपको 10 मिनट तक, हाँ अगर काम करते हैं आप भेड़ों में, अगर आप उनको पालते हैं तब दूसरी बात है, लेकिन जो शख्स भेड़ों बकरियों का काम ही नहीं करता,
जो सूटेड बूटेड है उसको कहें 10 मिनट तक किसी खुरली के पास खड़ा होकर दिखाए, नहीं होगा। लेकिन बादशाह का बादशाह इस कदर पस्त हो गया, इस कदर नीचे हो गया, उसने अपने लेवल को इतना नीचे गिरा लिया कि वो जानवरों के दरमियान आ गया। बोले हालेलुया, ताकि जानवरों को बचा ले। मैंने क्या कहा, ये इंसान जानवरों के बराबर थे, जिनको किसी तरह की तमीज नहीं थी, हर तरह की बदी उनके अंदर थी, गुनाह उनके अंदर था। आदम के गुनाह के बाइस उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। यीशु मसीह जानवरों के दरमियान आ गया ताकि जानवरों को नजात दे। मैं किनको कह रहा हूं, जानवर? जी हां, ताकि हम क्या थे, गुनाह में होते हुए हम तो जानवरों से भी बदतर थे। वो वहां आ गया ताकि बनी नौ इंसान को निजात दे सके। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैंने 21 दिसंबर को क्रिसमस प्रोग्राम के दौरान एक मिसाल दी थी कि अगर कोई चीज गिरी हो, आदम गिर चुका था, इंसान गिर चुका था, अगर कोई चीज गिरी हो, एक बच्चा गिरा हो, हम उसको झुकने के बगैर नहीं उठा सकते। खड़े खड़े हमारे हाथ इतने लंबे नहीं है कि मैं खड़ा रहूं और हाथ मेरा इतना जमीन तक पहुंचे कि मैं उसको उठा लूं। गिरे हुए को उठाने के लिए गिरना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यीशु मसीह झुक गया। हालेलुया, हालेलुया। सानू फरोतनी दा सबक सिखाना आया। तालियां बजा सकते हैं। देखो जी अर्शा वाला, बोलिए, देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया, देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया, मरियम तो पैदा होया आया। और एक और उसमें मिसरा है, सानू फरोत लीदा सबको सिखाने आया। इतने छोटे से शहर में, और इस छोटे से शहर में, एक छोटी सी चरनी में, और फिर गंदगी में, घास फूस जहां पे था, जहां जानवरों की जो है गंदगी पड़ी हुई थी, गलासत पड़ी हुई थी, वहां यीशु मसीह आया, महल में नहीं। हाँ, मजूसियों से गलती हो गई थी एक। आपको पता मजूसियों से क्या गलती हुई थी? सितारा अच्छा भला उन्हें लेके आ रहा है इतने दूर दराज से। बस कभी कभी हम भी सितारे के पीछे चल रहे होते हैं, कलाम के पीछे, और हमारा अपना ज़हन जो है हमें कलाम से हटा देता है। सितारा अच्छा भला लेके आ रहा है, अपने ज़हन ने काम करना शुरू किया। बादशाह पैदा हुआ है तो वो तो बादशाह के महल में ही होगा। क्यों सोचा? अपनी सोच। जब सितारा आगे है जो लेके आया, उसके पीछे पीछे चलो। लेकिन उनकी सोच उनको बादशाह के दरबार में ले गई, गलती हो गई उनसे। आपसे होती कभी? कलाम हमारा रोशन सितारा है, कलाम हमें सही सही लेके आ रहा है, लेकिन अपना ज़हन कभी लड़ाते हैं कि नहीं यार, ये बाइबल में जो लिखा है ना, ये नहीं, बात कुछ और है। हम अपने नजरियात पे चले जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। हजारों बच्चे जो है कत्ल हो गए इस छोटी सी उनकी गलती से। लेकिन एक और बात है, मजूसियों को फिर भी मैं शाबाश देता हूं। वो वहां से निकले, सितारा वहीं खड़ा था, सितारा वहीं खड़ा था, और सितारा फिर उनके आगे आगे चलना शुरू हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर गलती हो जाए, अगर कहीं गलती से आप बेराह हो जाए और कलाम को छोड़ दें और आप होश में आए, तो सितारा फिर वही होगा, कलाम फिर वही है, फिर ज़हन में आ जाएगा। और जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, फिर आपको याद आना शुरू होगा और आप कहेंगे खुदावंद सॉरी, हमने गलती। आप फिर सही रास्ते पे आ जाएंगे। कभी जीपीएस आपने देखा? जीपीएस, जब आप उबर में सफर करते हैं तो आप आवाज सुनते हैं कि दाएं मुड़ो, राइट मुड़ो, 600 गज के फासले पर राइट मुड़ना है। आपको फासला बताता है जीपीएस। बाइबल मुकद्दस आपका जीपीएस है। हालेलुया, नेविगेटर है, वो आपको राह दिखाता है। अच्छा सुने, वो अच्छा वाला राह दिखा रहा होता है, तजर्बा करके देखे। आप गाड़ी में बैठे हैं, वो कह रहे हैं 500 मीटर के बाद दाएं मुड़े, हम गलती से अगर बाएं मुड़ जाए फिर क्या होगा? जीपीएस वहां से रास्ता फिर बता देगा। गलत हो गए हो, वो कहते हैं वी आर कैलकुलेटिंग। वो दोबारा वहां से रास्ता तलाश करके कहता है अब भी मुड़ जाओ। अगर मान जाएंगे तो सही रास्ते में पहुंच जाएंगे, वरना पता नहीं कहां के कहां चले जाए। तो खैर, बात मैं वापस वहीं पे आऊंगा। बैतलहम में जाना था, वो बादशाह के महल में चले गए। सितारे को कभी ना छोड़ें,
کلام کو کبھی نہ چھوڑیں. خدا کا کلام زندہ ہے, مؤثر ہے اور بے داغ ہے اور دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے اور بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے, اور وہ زندگی کی روٹی ہے, وہ نور ہے, وہ چراغ ہے. اور اسی کو داؤد نے کہا ہے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس لیے جب چراغ آپ کے پاس ہے, روشنی آپ کے پاس ہے, مجوسیوں نے جو غلطی کی ایسی غلطی کبھی نہ کریں, لیکن اگر ہو جائے مجوسیوں کی طرح تو پھر سوری کہہ کے واپس ستارے کے پیچھے چلنا شروع کریں. کلام نور ہے, آپ کو صحیح راہ پہ لے کے چلے گا. آج آپ نے ایک نیا سبق سیکھا ہے اور وہ یہ ہے, کلام روشنی ہے, ستارہ روشنی ہے, یہ اس کی تمثیل ہے, ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا. تو بات ہو رہی تھی بیت لحم کی, تو ستارہ یا روشنی آپ کو صحیح سمت میں بیت لحم میں لے جائے گی. اور وہ گئے وہاں پہ, اور پھر بیت لحم ایک چھوٹی جگہ, لیکن اگر میں ایک بات اور بتاؤں, ناصرت جہاں کے وہ رہنے والے تھے, وہ کون سا بڑا شہر تھا؟ وہ کوئی یروشلم تو نہیں تھا, وہ یرو بھی نہیں تھا, وہ کوئی اور شہر بھی نہیں تھا, ایک چھوٹا جا پنڈ, چھوٹا سا گاؤں ناصرت. اور آپ کو یاد ہے جب کسی نے کہا کہ یہ کون ہے جو معجزے کرتا ہے, یہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے, جو 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو کہتا ہے لازر نکلا, یہ کون ہے جو ہوا و پانی کو تھماتا ہے, یہ کون ہے جو 38 سال کے مریض کو کہتا ہے اٹھ اور چل پھر, یہ کون ہے جو ایک گناہ سے بھری عورت کو جو کئی شوہر کر چکی تھی اس کو معاف کر دیتا ہے, یہ کون ہے جو پتھر مارنے والی سنسار کرنے والی عورت کو کہتا ہے جا میں بھی تجھ پہ حکم نہیں چلاتا, یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ کون کا جواب کیا ہے, یہ ناصرت کے رہنے والے ہیں, یہ ناصرت کے رہنے والے, یوسف کا بیٹا ہے, یوسف کا اس کا پالنے والا ہے, یہ مریم کا بیٹا ہے, یہ ناصرت کا رہنے والا ترخان کا بیٹا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا ناصرت, کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ ناصرت سے یسوع مسیح. ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے ہم دنیا کی جھڑن ہیں, دنیا کی نظر میں کوڑا کرکٹ ہے, لیکن ہم بے وقوف ہیں لوگوں کی نظر میں, ہم بے وجود ہیں لوگوں کی نظر میں, ہم نکمے ہیں لوگوں کی نظر میں, لیکن خدا ہمیں دنیا کو راہ دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. ہم چھوٹے ضرور ہیں, ہم کسی چھوٹے گاؤں کے رہنے والے ضرور ہیں, شاید ناصرت کے رہنے والے ہوں, شاید بیت لحم کے رہنے والے ہوں, یا ہمارا درجہ جو ہے معاشرتی طور سے چھوٹا ہو, ہم علم میں کم ہو, پیسے میں کم ہو, دولت ہمارے پاس کم ہو, مکان بھی اپنا نہ ہو, کرائے کا جو وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہو, اور اپنے آپ کو ہم کم تر سے کم تر سمجھتے ہوں, لیکن یسوع اگر آپ کے اندر ہے تو پھر سمجھے ناصرت سے یسوع مسیح آ سکتا ہے, تو آپ کے اندر سے بھی یسوع مسیح دنیا کو نظر آ سکتا ہے. تالیاں نہیں بجائیں گے یسوع کے لیے؟ ناصرت سے انہوں نے کہا کیا کوئی بڑا شخص ناصرت سے پیدا نکل سکتا ہے؟ اگر یسوع مسیح جو اتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ, نجات دینے والا بیت لحم سے آ سکتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے, اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے, اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. کس لیے؟ ہاں چھوٹا سمجھنے کی ایک اور بات ہے, وہ تو عاجزی ہے نا, وہ تو حلیمی ہے. آپ کہتے ہیں نو بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے اندر بستا ہے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. بیت لحم چھوٹا ہے, ناصرت بھی چھوٹا ہے, لیکن یسوع مسیح جو وہاں پیدا ہوا, ایسا نبی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. خدا یسوع مسیح نبی بھی ہے. کس کا خیال ہے کہ نبی نہیں ہے؟ نبیوں کا سردار ہے لیکن نبی ہے. نبی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا پیغام دینے والا. یسوع مسیح نبی بھی ہے کیونکہ دنیا کو گناہ سے کی خبر دیتا تھا, گناہ سے بچانے کی خبر دیتا تھا, خدا کا پیغام لے کے آیا تھا. اور وہ سردار کاہن بھی ہے. سردار کاہن, نبی اور کاہن میں فرق دیکھیں. نبی خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں, اور سردار کاہن انسانوں کا جو خیال ہے, ان کی دعائیں جو ہیں
उनके जो ख्यालात हैं उनको खुदा तक पहुंचाते हैं। यसु मसीह सरदार कायन भी है और यसु मसीह नबी भी है और फिर बादशाह भी है। ओ जलाल दा बादशाह कौन है? यसु मसीह बादशाह भी है। और कैसा बादशाह? अपनी बादशाह, जिसकी बादशाह को सवाल नहीं है। आज अगर किसी कोई शख्स तख्त से उतर जाए, कोई मासूल हो जाए, किसी की हुकूमत जाती रहे, तो फिर वो पनाह ढूंढता फिरता है, पनाह ढूंढता फिरता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी क्या कहना चाहिए, गार्ड्स की जरूरत नहीं है। वो हमारी खुद हिफाजत करता है। बोले हालेलुया। वो हिफाजत करने वाला है, हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, नासुल से पैदा होने वाला। पेशन गोई पूरी हुई, छोटे से शहर बैतलहम से यीशु मसीह ने जन्म लिया। अगर आप अपने आप को छोटा समझते हैं, आजजी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अगर घटिया या कमतर के ख्याल से सोचते हैं छोटा, तो मत सोचें। आप कोई शय हैं, कहें मैं कोई चीज हूं, बोले अपनी तरफ हाथ करके, मैं कोई बड़ी चीज हूं, बोले मैं कोई बड़ी चीज हूं, क्योंकि मेरे अंदर मसीहा बसता है, मेरे अंदर मसीहा बसता है। मैं नासरत से भी क्या कहना चाहिए, छोटा हूं, मैं यरूशलेम से भी छोटा हूं, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मसीह मुझ में बसता है। हालेलुया। इसलिए अगर कभी बदरू गिरफ्तार आपके पास आए, मत छोटे, आप मत सोचें कि आप छोटे हैं। यीशु के नाम से कहें, ऐ बदरू तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, बदरू भाग जाएगी। अगर कोई बीमार आपके पास आता है, मत छोटे सोचे कि मैं छोटा हूं, मैं घटिया हूं, मैं तो भी नया मसीह के पास आया हूं। डांटे उसके बुखार को, ऐ बीमारी तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं, चली जाएगी। याद रखें, क्या कोई बड़ी शख्सियत बैतलहम से निकल सकती है? अगर निकल सकती है तो हम भी छोटे नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटी, जिंदगी की रोटी हमारे अंदर है। हालेलुया। और आखिर में जिंदगी की रोटी यीशु मसीह भी है, जिंदगी की रोटी यीशु का कलाम भी है। लिहाजा आज से उसका कलाम पढ़े, अपने आप को एक मकाम दे कि आप के पास इख्तियार है। यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है। जाओ, सांप और बिच्छू को कुचलो, अब इसकी सारी ताकत पे गालिब आओ और कहें कि खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरा शागिर्द हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, प्लीज आंखें बंद कर दीजिए।